October, November 17, variance 11. Oh, just hold on a second, please. All right, guys. Which formula represents the empirical formula of a compound? Empirical formula. So it's basically answer is D because इसका जो molecular formula है वही इसका empirical formula है. ठीक है. ये है आपके पास CH3 COOH. इसका मतलब ये molecular formula हो गया, ये गलत हो गया. अगर ये CH3 COOH है और मैं इसका हाफ करूं तो it becomes C2 CH2O. It's a very technical sort of question. Guys, this CH3 COOH, so this is basically molecular formula. इसलिए गलत हो जाएगा. ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी molecular formula है. ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी molecular formula है. ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये empirical formula है. सही है, हाफ होकर मिला है आपको. तो कहते हैं हेक्सेन और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड. The relative first ionization energies of 4 elements with consecutive atomic number below 20 are shown in the graph. One of the element reacts with hydrogen to form a covalent compound with formula HX. Which element could be X? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड है ये. इसका मतलब element X should be halogen. And halogen belongs to group 17 of the periodic table. तो अगर ये नोबल गैस है, बिकॉज ये नोबल गैस की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो नोबल गैस से पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो ग्रुप 17 होता है, राइट? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा. A is going to be the right answer. In which structure are 3 atoms bonded together in a straight line? The point is bonded together in a straight line. तो पॉलीथीन में स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसमें. प्रोपेन में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. तो राइट आंसर इज SF6. इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी और ये होगा स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आप इस तरह से देखें स्ट्रेट लाइन, इस तरह से देखें स्ट्रेट लाइन, इस तरह से देखें स्ट्रेट लाइन. Question number 4. In the sodium chloride lattice, the number of chloride ions that surrounds each sodium ion is called the coordination number of the sodium ion. What are the coordination numbers of the sodium ion, the chloride ion, and the sodium chloride lattice? According to O-level chemistry, one sodium ion holds 6 chloride ion, and vice versa. इसका मतलब right answer is going to be 6, 6. That is C. Because अगर एक sodium ion 6 chloride ion को hold कर रहा है, तो एक chloride 6 sodium ion को hold करेगा in a crystal lattice. ठीक है? A fluorescent light bulb has an internal volume of 400 cm3 and an internal pressure of 200 kilopascal. It is filled with 0.03 moles of an ideal gas. What is the temperature of the gas inside the fluorescent light bulb? Obviously, PV equals to nRT. Apply करूँगा मैं temperature मालूम करना चाहता हूँ, तो temperature मालूम करने के लिए मैं PV upon nR कर लूँगा. Pressure कितना है मेरे पास? 200 kilopascal. उसको पैस्कल में कन्वर्ट करने के लिए 2000 करूंगा, मैं 10 टू द पावर 3 कर लूंगा. वॉल्यूम मेरे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 कर लूंगा, डिवाइडेड बाय मोल्स मेरे पास है 0.03 और आर की वैल्यू है 8.31. तो यहाँ से टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा बेटा
321 केल्विन। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? मेरे पास आंसर हो जाएगा बी। अगर मैं इसको 3.21 इंटू 10 टू द पावर 2 करूँ, 2 करूंगा। सही है ना? One of the reaction is in lead acid cell is shown, which statement about this reaction is correct? Lead is oxidized and reduced. बेटा यहाँ पर lead की oxidation state 0 है और यहाँ पर lead की oxidation state 2 plus है, तो basically lead is oxidized only क्योंकि उसकी oxidation state increase हो रही है। यहाँ पर lead की oxidation state plus 4 है, तो lead is oxidized and reduced। बिल्कुल सही बात है, वो 0 से +2 में भी जा रहा है, +4 से +2 में भी जा रहा है, इसका मतलब A would be the right answer. Question number 7, iodine and propanol react according to the following equation. If the concentration of propanol is increased, keeping the total volume constant, rate of reaction also increases. ठीक है, तो जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन, effective collision in a unit time increase होता है, and therefore D is going to be the right answer. ठीक है? Question number 8, sulfur can be oxidized in 2 ways. Sulfur trioxide can be made. Sulfur trioxide can be made from sulfur dioxide and oxygen according to this equation. What is the standard enthalpy change for this reaction? Okay. So guys, सबसे पहली बात मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूं जो कि मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। ये मेरे पास सल्फर है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है। सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू दी हुई है -296.5 क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड की वैल्यू -791.4 है, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करूंगा क्योंकि 2 मोल्स की गिवन है वो ऑलरेडी। सही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो लगाएंगे, वैल्यूज को अरेंज कर देते हैं। x प्लस -296.5 मल्टीप्लाई बाय 2 -791.4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू -198.4। तो -198.4 कहां पर है आपके पास? D में है, तो D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं आपसे हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये इक्वेशन गिवन है। In an experiment, B mole of hydrogen iodide were put into a sealed vessel at a pressure P. At equilibrium, X moles of hydrogen iodide had dissociated. Expression for Kp is correct. Okay. तो बेसिकली हम क्या करने लगे, हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं और हम जानते हैं कि H2 और I2 बनेगा। इनिशियली मेरे पास इसके B मोल्स हैं, ये दोनों 0 होंगे। इक्विलिब्रियम के ऊपर X मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हुए तो ऑब्वियसली X मोल्स ये भी बने होंगे और x/2 ये भी बना होगा। उसकी वजह ये है कि ये 1:2, ये 2:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करें। तो अगर यहाँ से x मोल्स रिएक्ट हुए तो ये हाफ होकर मिल रहे होंगे आपको। सही है? हम यहाँ लिख देते हैं इस बात को भी कि मोलर रेशियो इज 2:1 so if 1 mole of HI dissociate, 0.5 mole of each product is formed. सही, तो ये हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये सही है, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि x मोल्स रिएक्ट कर गए इसलिए b - x हो जाएगा ये। ठीक है ना? इसको रख दीजिए आप x/2 का स्क्वायर कर दीजिए ओवर
ये हो जाएगा b माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 2 मोल्स हैं HI के, और आप जानते हैं कि इसके 2 मोल्स भी हैं। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 मोल्स हो जाएंगे। तो आप ये नोट करें ये कहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं, बल्कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ सही है, सॉरी ये ये सही है। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें कुछ इस तरह से तो ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1/b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 4 इंटू बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आप देखें यहाँ पर होगा, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। The diagram shows the distribution of molecular energies in a sample of a gas at a temperature T1. The activation energy for uncatalyzed reaction is this as shown. ये uncatalyzed reaction है at temperature T1. Which diagram correctly shows the new distribution of a new activation energy, that is catalyzed activation energy, with the temperature is increased to T2 and a catalyst is used that increases the rate of reaction. So that's a very complicated sort of situation. जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होती है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगी तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर आ रही होगी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉर कैटलाइज्ड। ठीक है, तो आप ये सिनेरियो चेक करें किस ऑप्शन के अंदर है। ये सिनेरियो आपके पास आ रहा है बी में, और ये सिनेरियो आपके पास आ रहा है सी में। ठीक है, तो कैटलिस्ट का जो सिनेरियो है वो बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो जो पीक ऑफ द कर्व है वो ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होकर राइट हैंड साइड की तरफ चले जाएगा कर्व। तो ड्रॉप होकर राइट हैंड साइड की तरफ कर्व जा रहा है सी में, तो ये T2 भी ठीक है, which means C is going to be the right answer. All right. फिर है क्वेश्चन नंबर 11. 200 gram of water at 25 degrees Celsius. The water is heated to 75 degrees Celsius by burning 2 gram of ethanol. What is the amount of energy transferred to the water? सही है, ये हो जाएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। मास ऑफ वाटर है आपके पास 200, C की वैल्यू है 4.12, टेम्परेचर चेंज आपके पास है 75 डिग्री सेल्सियस, और वो 25 तक, तो 75 माइनस 25 कर देंगे, तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 41800 जूल्स। इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 41.800 किलो जूल्स। राइट आंसर इज सी। इसके बाद क्वेश्चन 12, द एलिमेंट क्लोरीन मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड सल्फर ऑल आर इन पीरियड 3. What is the correct sequence of the melting point of these elements from lowest to highest? आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का लोएस्ट होता है, सिलिकॉन का हाईएस्ट होता है, सल्फर का ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है। तो राइट आंसर इज सी। आपके जहन में पूरा का पूरा स्केच होना चाहिए, तो अगर पूरा स्केच होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत आसानी से जो है ना, एक मिनट, जज कर सकते हैं। क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है, उससे ज्यादा सिलिकॉन का, सल्फर का होता है, सल्फर से ज्यादा सिलिकॉन का होता है। ओके, मैं बता देता हूँ कि सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, तो इसी वर्किंग कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर सिलिकॉन का हाईएस्ट होता है
और क्लोरीन का जो है वो लोएस्ट होता है। अब चेक करें क्लोरीन कहाँ पर लोएस्ट है। क्लोरीन लोएस्ट बी में है और ए में है, और सिलिकॉन हाईएस्ट किस में है, ए में है। तो इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एन एलिमेंट Y reacts according to the following sequence। अगर Y ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो व्हाइट सॉलिड बनाएगा, व्हाइट सॉलिड HCl से रिएक्शन करेगा, NaOH बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे, कलरलेस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं इन एक्सेस एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और बेटा ये बनेगा AlOH टेकन 4 नेगेटिव। ठीक है, which compound would most usually be added to soil to reduce its acidity। soil की acidity neutralize करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, since calcium hydroxide is given, which is why B is the right answer। बट मैं यहाँ पर भी रिमाइंड करा देता हूँ कि आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। The mineral dolomite is a mixture of magnesium carbonate and calcium carbonate। ठीक है, an aqueous reagent X was added to sample of dolomite, effervescence was seen and a white solid Y is formed। ठीक है, ओके। अगर effervescence रिमूव हुई है, इवॉल्व हुई है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ, और किसी भी कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस वक्त रिमूव होती है जब आप कार्बोनेट को रिएक्शन करवा दें एसिड के साथ। इसका मतलब इट हैज टू बी एन एसिड। व्हाट कुड बी द करेक्ट आइडेंटिफायर ऑफ रिएजेंट X एंड सॉलिड Y? तो एसिड होगा। चलिए इक्वेशन बना के देख लेते हैं। ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाता हूँ तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएगा, ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम सल्फेट में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। आप जानते हैं डाउन द ग्रुप solubility decreases, that shows the magnesium sulfate is more soluble than calcium sulfate। इसका मतलब जो व्हाइट सॉलिड है वो इसका होगा। एक बात तो तय होगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है आपके पास रिएजेंट कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर व्हाई नॉट कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, उसका व्हाइट सॉलिड नहीं बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, उसका व्हाइट सॉलिड नहीं बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होता है, उसका व्हाइट सॉलिड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट, which fertilizer contain the greatest percentage of nitrogen by mass। या ये तो ओ लेवल केमिस्ट्री है, इसमें नाइट्रोजन आपके पास 2 है तो 14 टाइम्स 2 कर दीजिए, डिवाइड करें इसको 80 से, विच इज द एमआर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ इससे रिलेटेड तो आपके पास आंसर आना चाहिए 35%। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसके लिए वर्किंग करूं तो ये देगा 14 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 132 into 100,
ये हो जाएगा 21%। फिर आप इससे रिलेटेड करें कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 14 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय mr ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विच इज 132 into 100, तो ये भी 21% आ जाएगा। आप यूरिया से रिलेटेड करें तो यूरिया में नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय यूरिया का mr होता है 60 into 100, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 40%। तो वो पूछें ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास, ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ये होगा राइट आंसर। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि 71 gram of chlorine reacts with an excess of sodium hydroxide solution at a particular temperature. The reaction produces exactly 35.5 gram of product X. Okay, what is product X? Okay. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, ये कन्वर्ट होगा NaCl में, NaClO3 में और 3 वाटर मॉलिक्यूल। सही है। क्लोरीन का MR है 71 और उसके 3 मोल है, तो 71 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? 213। इसका मतलब क्लोरीन आपके पास यहाँ पर है 213 और सोडियम क्लोरेट का MR है 106.5। तो अगर आपने 71 ग्राम लिया है यहाँ पर, तो बताइए ये कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यार, 106.5 मल्टीप्लाई बाय 71 डिवाइडेड बाय 213, तो यहाँ से कितना आ रहा है बेटा? 35.5 ग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको 35.5 ग्राम प्रोडक्ट एक्स से मिल रहा है और एक्स इज गोइंग टू बी सोडियम क्लोराइड 5। आपने एग्जैक्टली इसी तरह की वर्किंग जो है वो NaClO के लिए भी करनी है और NaCl के लिए भी करनी है, एंड ऑब्वियसली इन दोनों से आंसर नहीं आएगा 35.5, और ये तो एग्जैक्टली हो भी नहीं सकता। कंपाउंड Q is a white crystalline solid which dissolves easily in water। एक कंपाउंड Q है, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो रहा है और वो white crystalline solid है। When concentrated sulfuric acid is added to dry sample of Q, steamy white fumes are produced of HCl। When passed through aqueous silver nitrate solution, white precipitate is formed। इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। The precipitate is soluble in dilute aqueous ammonia। कंफर्म हो गया। What would be the identity of compound Q? तो भाई HCl, एक बात तो तय हो गई है कि सोडियम क्लोराइड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, तो बेटा ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, ये क्रीमी प्रेसिपिटेट्स देता है, उसने व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बोले, ये भी गलत। ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज सी। The strength of covalent bonds within hydrogen molecules and the van der Waals forces between halogen molecules vary going down group 17 from chlorine, bromine to iodine. Which row shows these? बेटा down the group number of electrons increase होते हैं, strength of van der Waals forces increase होती हैं। तो strength of van der Waals forces जो है वो increase हो रही है, और जाहिर सी बात है down the group atomic size of halogen increases, so bond length between the elements increases, bond length increases, bond strength decreases। तो bond strength कहाँ decrease हो रही है? यहाँ हो रही है, which is why B is the right answer। फिर आपके पास द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड Q इज शोन। ठीक है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स। जब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की, इसका मतलब यू नीड टू चेक ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ। अच्छा, तो पहली तो बात ये कि ये आपका ज्योमेट्रिकल देगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है।
तो यहाँ से आपको सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिल जाएगा। एक बात तो तय हो गई यहाँ से कि आपको सिस ट्रांस मिल जाएगा यहाँ से। दूसरी बात, ये आपकी कायरल कार्बन एटम होगी, तो अगर ये कायरल कार्बन है तो जाहिर सी बात है 2 टू द पावर 1 करके ये 2 आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास स्टेरियो आइसोमर्स? टोटल स्टेरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया और ये 2 हो गए, तो ये टोटल 4 स्टेरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड एक्स। तो भाई ये है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ। तो हम प्रायोरिटी अल्कोहल को देते हैं ओवर एल्कीन। ये बात मैंने आपको क्लास में भी बताई है IUPAC नाम पढ़ाते हुए। एक बात तो ये ध्यान में रखें, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसका मतलब ये ट्रांस सिचुएशन है आपके पास। सही है। तो ट्रांस है आपके पास, तो चारों ऑप्शंस के अंदर ट्रांस है, चारों में से भी कोई एक ठीक हो सकता है। अल्कोहल जो है वो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर है, तो 2 हाइड्रोक्सी। सही है ना, ये है आपके पास 2 हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सी नहीं आ रहा। और 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स 3 इन हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन, तो ट्रांस 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन इज गोइंग टू बी ए। ठीक है भाई। थर्ड कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम हेक्स 3 इन कह देंगे। So trans 2 hydroxy hex 3 is going to be the right answer. Question number 22. Many but not all organic reactions need to be heated before a reaction occurs. Which reaction occurs quickly at room temperature? Room temperature. Room temperature के ऊपर बेटा एल्कीन के रिएक्शन होते हैं, ब्रोमीन के साथ मैंने लिखवाया है, RTP का कंडीशन होती है। इसमें आपको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये गलत हो गया। इथेनॉल से इथीन बन रहे हैं, तो इसमें आपको 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर आपको हीट करना होता है रिएक्शन को, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर इज ए 23. A section of an addition polymer chain is shown. ठीक है। Which monomer could be used to make this polymer? बेटा आप एक काम करें, आप बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दें। तो ये आपका एक मोनोमर हो गया, ये आपका दूसरा मोनोमर हो गया, और दोनों सेम मोनोमर हैं देखा जाए तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2। आप चेक करें ये कहाँ लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, बी में लिखा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद आपके पास है which organic reaction is an example of nucleophilic substitution? तो nucleophilic substitution reaction takes place in alkyl halide। तो alkyl halide जो है वो ये भी है, alkyl halide ये भी है, यहाँ पर यहाँ ये भी अल्काइल हैलाइड है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड है, जिसका मतलब या तो ये आंसर है या बी आंसर है। प्रॉब्लम ये है कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो एल्कीन नहीं बनता, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यार ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है गलत, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये भी गलत। Citric acid can be converted into tricarbalic acid into stages and intermediate Q is formed. ठीक है। Which reagent are needed for each stage? सबसे अहम बात, ये तीनों के तीनों CO2H यहाँ पर सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अल्कोहल रिमूव हो गया, तो
अल्कोहल को रिमूव करने के लिए हम स्टेज 1 में डिहाइड्रेशन करेंगे। तो स्टेज 1 इज डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन के लिए वी नीड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जाहिर सी बात है Q जो है वो एक एल्कीन होगी। उस एल्कीन में अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया होगा, तो ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजनेशन के लिए यू नीड हाइड्रोजन गैस इन निकल कैटलिस्ट। तो आप ऑप्शन चेक करें ये कहाँ पर है। तो concentrated H2SO4 in hydrogen gas in the presence of nickel catalyst is going to be A. Glucose can be used to prepare sorbitol, a compound used as a sugar substitute. ठीक है, आप नोट करो ये एल्डिहाइड है आपका और ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अल्कोहल में, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। बाकी तो पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज है। Which जाहिर सी बात है रिडक्शन हो रही है तो you need a reducing agent and therefore B is going to be the right answer. तो सोचने वाली बात भी नहीं है, सही है। Okay, 3-methylbutanone is treated with alkaline aqueous iodine. The mixture products is then acidified. Which compound is present in the final mixture of the product? या 3-methylbutanone इस तरह से बनेगा। सही है। अब जब आप इसको आयोडो फॉर्म से रिएक्शन करवाएंगे तो आप जानते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में, और क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है तो ये सॉल्ट बना लेगा प्लस वेट ये ग्रुप है तो इस ग्रुप की वजह से CHI3 बनेगा, इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। फिर आएगा आपके पास CH3 CH CH3 CO और यहाँ पर आ जाएगा OH, लेकिन क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू सॉल्ट। सही है, तो ये सॉल्ट बन रहा होगा फाइनली। तो 3-methyl-butanoic एसिड ये बनाया है मैंने, 3-methyl-butanoic एसिड, 3-methyl-propanoic एसिड है ये। राइट आंसर इज सी, क्योंकि ये 3 नहीं है, ये मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है बस। इनफैक्ट हम इसको 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं, बट एग्जामिनर ने मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड लिख कर दिया है, कोई इशू नहीं है। At room temperature, propanoic acid was reacted to produce sodium propanoate. ठीक है, no gas was produced during the reaction. तो इसका मतलब NaOH से रिएक्शन हो रहा होगा। राइट आंसर इज NaOH। सॉल्ट वाटर बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती, इससे भी गैस मिलेगी, इसलिए ये क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए गलत। ये भी क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए गलत। ये इसका रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन विद एसिड, ये भी गलत। ये ध्यान में रखना कि नो गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। Question 29. Ethene is reacted with the steam in the presence of concentrated phosphoric acid. तो हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, इथेनॉल बनेगा। The product of this reaction is added to acidified potassium dichromate 6 and heated under flux for 1 hour. तो ethanoic acid बन गया। The final organic product is collected and labeled X, यानी ethanoic acid बन गया। वो कह रहे हैं butene is treated with hot concentrated acidified potassium magnate 7, तो ethanoic acid बनेगा। The final organic product is collected and labeled Y. Which statement is correct? Okay. बेटा जब इथीन से रिएक्शन होता है तो ये बनेगा
इथेनॉल। फिर इथेनॉल जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ 1 आवर तक रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट होगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए ये ब्यूट-2-ईन है और ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो ब्यूट-2-ईन ये होगा, तो डबल बॉन्ड के साथ जो CH होते हैं वो COH में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड बन जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। अब पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ X हैज मोर कार्बन एटम देन 1 मोल ऑफ Y। नहीं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम है, दोनों में 2-2 कार्बन एटम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 मोल ऑफ Y हैज मोर कार्बन एटम देन 1 मोल ऑफ X। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों में फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि दोनों सेम कंपाउंड है, इथेनोइक एसिड है दोनों। A sample of ester is hydrolyzed. The product mixture is then treated with hot acidified KMnO4. Okay, quite complicated scenario. CH3, CH2, CH2, CO, O, CH2, CH3। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे आप, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH2, CH2, COOH, और यहाँ से बनेगा इथेनॉल। अगर मैं इस इथेनॉल को ट्रीट करवा रहा हूँ KMnO4 से, हॉट एसिडिफाइड KMnO4 से, तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू इथेनोइक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद। ठीक है, यहाँ हाइड्रोलाइज कर रहे हैं आप, वहाँ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आप। सो आपके पास एक एक ब्यूटानोइक एसिड बनेगा और एक इथेनोइक एसिड बनेगा, और ये ऑप्शन सी के अंदर अवेलेबल है, व्हिच इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 31. The definition of many chemical terms can be illustrated by chemical equations. Which term can be illustrated by an equation that includes the formation of a positive ion? Beta, formation of positive ion is basically the ionization की thing. इसके अलावा hydrolytic fusion में भी तो positive negative ions बनते हैं, if you remember. सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एटमाइजेशन में न्यूट्रल गैसियस एटम बनता है, न्यूट्रल गैसियस एटम इज फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज द राइट आंसर। A student makes sodium chloride by reacting together 0.025 mole of sodium carbonate with an excess of 0.2 mole per dm cube hydrochloric acid. Which statement about the quantities of substance are correct? वो कह रहे हैं 600 cm cube of carbon dioxide produced at room temperature and pressure. Okay. तो पहली तो बात ये है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो जो है वो 1:1 का है, तो अगर 0.025 मोल्स इसके हैं तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इतने ही होंगे। सही है, मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करने के लिए मैं उसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24,000 cm³ से, ये हो जाएगा आपके पास 600 cm³, जो कि बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। फिर वो कह रहे हैं आपसे कि 250 cm³ of hydrochloric acid are needed to exactly neutralize sodium carbonate. ओके, अब देखो सोडियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान रेशियो क्या है बेटा, 1:2 का।
अगर आपने 0.025 मोल्स लिए हुए थे तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे? 0.025 multiplied by 2, so it's going to be 0.05. सही है। आप जानते हैं कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.2 मोल पर डीएम, तो 1000 cm³ में कितने मोल्स हैं? 0.2। तो अगर 0.05 मोल्स हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 0.05 multiplied by 1000 divided by 0.2, it's going to be 250 cm³। तो इसका मतलब ये भी ठीक हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 1.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। यार सोडियम कार्बोनेट है आपके पास और आप सोडियम क्लोराइड से कंपेयर कर रहे हैं, ये 1:2 का रेशियो है। अगर ये 0.025 है तो जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ NaCl हो जाएंगे 0.05। ठीक है, फिर आप जानते हैं मास ऑफ NaCl मुझे निकालना है, तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सोडियम क्लोराइड के MR से, विच इज 58.5। जब वो 58.5 से रिएक्शन करेगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 into 58.5 is going to be 2.925 ग्राम आ रहा है। ये वैल्यू इस वैल्यू से टैली नहीं हो रही, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वो कह रहे हैं वन वे ऑफ रिकवरिंग टिन फ्रॉम ओल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स इज टू डिसॉल्व इट इन अ मिक्सचर ऑफ concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड and concentrated नाइट्रिक एसिड. Tin dissolves because it reacts with a mixture of these concentrated acid. ठीक है, which statement about this reaction is correct? Nitrogen is present in 3 different oxidation state in the reactants and products. That's right, because nitrogen यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है, तो 3 different oxidation state में बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +4. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सही है जी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन रिमेन्स द सेम, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसलिए क्योंकि क्लोरीन अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन -1 है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एंड देयर A is going to be the right answer. 34. The following reaction takes place in a suitable solvent. Which statement explains why this reaction should be classified as Bronsted-Lowry acid-base reaction? Okay. यार अमोनिया माइंस कॉन्जुगेट एसिड होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड हो गया। ये NH2 नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि अमोनिया माइंस जो है वो प्रोटॉन डोनर है, बिकॉज अमोनिया माइंस इज कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। बट ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड is a salt and this salt has nothing to do with this acid base theory. तो सेकंड गलत हो जाता है, तो राइट आंसर डेल्टा हो जाता है। फिर आपके पास which statement about the elements barium and calcium and the compounds are correct? Barium nitrate decomposes at high temperature. That's right, because down the group thermal stability of nitrates increases. तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे barium hydroxide is more soluble in water than calcium hydroxide. That's true, because down the group hydroxides की solubility, group 2 hydroxides की solubility increase होती है। Now the next is calcium is more reactive with water than barium. That's wrong, because down the group reactivity increases. So basically barium is more reactive than calcium, and therefore third statement is wrong, and hopefully Bravo is the right answer. ठीक है ना?
फिर उसके बाद आपके पास आता है 36 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव। तो आपसे वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैज नथिंग टू डू विद द रिएक्टिविटी, अनरिएक्टिव नेचर ऑफ दिस, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, दैट्स ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है। फिर वो कह रहे हैं आपसे द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हिच इज व्हाई दे हैव हाई बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज, दैट्स आल्सो ट्रू, एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। 37, in which molecule do all the carbon atoms lie in the same plane? साइक्लोहेक्सेन जो है वो सेम प्लेन पे नहीं होगा, इसलिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में एक हाइड्रोजन जो है वो डॉटेड लाइन पे होगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो पिरामिड पे होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जब वो कह रहा है कि सेम प्लेन हो, तो सेम प्लेन का मतलब होता है एट लीस्ट 3 carbon atoms should lie on the same plane. तो ठीक है, जब मैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो ये बनेगा। ठीक है, और अगर मैं 3D स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे पता है इसके 3 बॉन्ड्स ऐसे होंगे, स्पेशली दिस वन एंड दिस वन, जो कि प्लेन पर होंगे, मिनिमम 3 बॉन्ड्स, तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है 1, तो 1 में क्योंकि 2 इन है, तो 2 इन तो वैसे ही प्लेनर होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बेसिकली बी। ठीक है, आप चाहें तो हम इसका स्ट्रक्चर भी बना के दे सकते हैं आपको। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3 देन CH3। तो आप नोट करें, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी, तो प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। 3 बॉन्ड्स, 3 कार्बन एटम जो है वो प्लेन पर आ जाएंगे। सही है। 38, a reaction pathway diagram is shown. Which reaction would have this reaction pathway diagram? Beta tertiary alkyl halide undergoes 2-step mechanism via an intermediate, तो ये statement follow हो रहा है। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो जब सेकंड गलत हो जाता है तो आंसर डी हो जाएगा आपका। फिर वो कह रहे हैं द कंपाउंड ब्लो आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, व्हिच कंपाउंड विल प्रोड्यूस येलो प्रेसिपिटेट विद एल्कालाइन एक्वासाइडीन। येलो पीपीटी विद एल्कालाइन एक्वासाइडीन देखना है, और ये उसी वक्त देखेंगे आप जब आपके पास CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल हो। तो अब आप देखते हैं कि CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल इसमें अवेलेबल है CH3CHOH ग्रुप, ये अवेलेबल है। इसमें भी अवेलेबल है CH3CHOH ग्रुप, तो इसमें भी हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसमें भी हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट इज the reaction of ethanol with hydrogen cyanide to form 2-hydroxypropane nitrile is catalyzed by NaCN. What are the features of the intermediate of this reaction? Intermediate chiral होता है, आप चाहें तो बना के देख सकते हैं। इंटरमीडिएट ये बन रहा होगा आपका, ये इंटरमीडिएट है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसका मतलब chiral है, ये chiral है। ठीक है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है।
सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है इसकी। ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए। थैंक यू वेरी मच गाइस।